بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں GMC TV، میں آپ کا ہوسٹ ملک ٹیپو سلطان۔ پروگرام ہے UK امیگریشن لا ود زاہد چودھری۔ اس پروگرام میں ناظرین آپ کال کرتے ہیں اور ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم آپ کو وہ انفارمیشن دیں جو آپ کے لیے ہیلپ فل ہو۔ پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر سولیسیٹر جناب زاہد چودھری صاحب۔ زاہد چودھری صاحب سر، ویلکم ٹو دی پروگرام۔ جی بہت شکریہ سر۔ امیگریشن کا پروگرام ایز یوزول کوشش ہم کرتے ہیں کہ لوگوں کے لیے میکسیمم وہ انفارمیشن دیں جو ان کے لیے ہیلپ فل ہو سکے۔ تو پروگرام میں لوگ کال بھی کریں، لیکن بہت سے پروگرام میں ہمارے پاس سوالات جو ہیں وہ ہم کمنٹ سے اور میسیج سے ہمارے پاس ریسیو ہوتے ہیں، وہ میں نے کچھ لکھ بھی لیے ہیں۔ لیکن سب سے کامن کویسچن جو میں نے اکثر دیکھا ہے وہ پوچھا جاتا ہے کہ یار کہ آرٹیکل 8 کی لوگوں کو یا کنفیوز ہیں کیسے امپلیمنٹ ہوتا ہے، کس پہ لاگو ہوتا ہے، نہیں ہوتا۔ آج ذرا آرٹیکل 8 کے اوپر ذرا ڈیٹیل میں ہمارے ویورز کو تھوڑی انفارمیشن دیں سر۔ جی بہت شکریہ ٹیپو۔ یہ واقعی یہ جو سوال ہے یہ اکثر پوچھا جاتا ہے جی کہ یہ آرٹیکل 8 کیا ہے، اس کی امپلیکیشن کیا ہے، اس میں ویزے کی جو چانسز ہیں لیو ملنے کے وہ کیا ہیں، یہ سارا پوچھا جاتا ہے۔ جی پہلے تو یہ ہے کہ سمجھ لیجئے کہ یہ جو آرٹیکل 8 ہے یہ ہے ECHR، یورپین کمیشن آف ہیومن رائٹ، یہ اس کا آرٹیکل 8 ہے۔ اس کے اندر بہت سارے دیگر آرٹیکلز بھی موجود ہیں، لیکن یہ سوال کیونکہ پرٹیکولرلی صرف آرٹیکل 8 کا ہے تو میں صرف اسی کو آپ کو کروں گا۔ اس میں سادے الفاظ میں جیسے آپ نے کہا ہے کہ لا یہ کہتا ہے کہ کوئی بھی پبلک باڈی جو ہے اس کو یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ کسی شخص کی فیملی لائف اور پرائیویٹ لائف میں انٹرفیئرنس کرے۔ ٹھیک ہے جی۔ اب اگر ہم نے کوئی کلیم کیا ہے جو آرٹیکل 8 کو ڈیل کرتا ہے تو اس صورتحال میں ہم نے دونوں چیزیں ثابت کر سکتے ہیں یا ان میں سے ایک۔ نمبر 1 ہم یہ کہیں کہ جی ہم نے یہاں پہ فیملی لائف اسٹیبلش کر لی ہے، ٹھیک ہے۔ پھر یا کہیں کہ ہم نے یہاں پہ پرائیویٹ لائف اسٹیبلش کر لی ہے، یا پھر آپ کہیں کہ جی دونوں ہم نے یہاں پہ فیملی لائف اور پرائیویٹ لائف بھی اسٹیبلش کر لی ہے۔ اب فیملی لائف کیا ہے یہ سوال ہے۔ فیملی لائف یہ ہے کہ اگر سپوز کریں کہ آپ کے یہاں بچے ہیں، آپ کی کوئی سیٹل پارٹنر ہے یہاں پہ، ٹھیک ہے جی۔ ایون لا یہ کہتا ہے کہ اگر آپ کسی کلوز نیٹڈ کمیونٹی کے ممبرز ہیں تو یہ بھی کنسیڈر کیا جائے گا کہ آپ نے یو ہیو اسٹیبلش یور فیملی لائف ود دیٹ کمیونٹی ممبرز، ٹھیک ہے۔ تو وہ بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ یہ جو ہے نا اسٹیبلشمنٹ آف فیملی لائف اور اسٹیبلشمنٹ آف پرائیویٹ لائف، یہ ہے آپ کے سبجیکٹ ٹو دا فیکچوئل سچویشن کہ آپ کے فیکٹس کیا ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے فیملی لائف تو میں نے آپ کو بتا دیا۔ اب پرائیویٹ لائف جو ہے وہ یہ ہے کہ جی آپ اب ایک عرصہ ہو گیا آپ کو یہاں پہ رہتے ہوئے، اور اب آپ نے اپنے آپ کو UK کی سوسائٹی کے اندر آپ نے اپنے آپ کو اتنا رچ بس گئے ہیں آپ کہ اب آپ کا واپس جانا جو ہے وہ مشکل ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب صرف یہ کہہ دینا کہ جی میں یہاں پہ، لوگ اکثر کہتے ہیں جی کہ میں یہاں سے 15 سال رہ رہا ہوں تو اب یہ عرصہ ہو گیا ہے تو یا کیا میں پرائیویٹ لائف جو ہے اس کا یہ سہارا لے سکتا ہوں۔ دیکھیں اس میں آپ کو 2 چیزیں ثابت کرنی ہے پرائیویٹ لائف کو، یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جی آپ ایک عرصہ دراز سے یہاں رہ رہے ہیں، اور دوسرا یہ ہے کہ اب آپ واپس جا کے وہاں پہ انٹیگریٹ نہیں کر سکتے اپنی کنٹری آف اوریجن کے اندر۔ اس لیے یہ بڑا ضروری ہے کہ آپ لوگوں کو پتا ہو کہ جو پرائیویٹ لائف ہے وہ کیسے انووک کرنی ہے۔ تو جس نے بھی سوال پوچھا تھا، آرٹیکل 8 آف یورپین کمیشن آف ہیومن رائٹ جو ہے وہ آپ کی پرائیویٹ لائف اور فیملی لائف اگر آپ یہ ثابت کر دیتے ہیں کہ آپ نے اسٹیبلش کر دی ہے تو ایسی صورتحال میں آپ کو آرٹیکل 8 میں جو ہے وہ مل جاتا ہے۔ اب تو آرٹیکل 8 کو بہت زیادہ جو ہے وہ جیسے مثلا پرائیویٹ لائف ہے جی، اب پرائیویٹ لائف کو اب جو UK کی گورنمنٹ ہے، ہوم آفس جو ہے، انہوں نے امیگریشن رولز کے اندر ڈال دیا 276AD، ٹھیک۔ تو وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ پرائیویٹ لائف کہ اگر ایک بچہ جو ہے جس کی عمر جو ہے وہ 18 سال سے کم ہے، اور اگر وہ جو ہے وہ
7 साल तक इस कंट्री में रह जाता है तो वो उसका राइट बन जाता है। अब 7 साल में वो ये एस्टेब्लिश करेगा कि उसने प्राइवेट लाइफ जो है वो एस्टेब्लिश कर ली है। इसी तरीके से अगर आप यहाँ पे 20 साल तक रह गए हैं तो आपने ये साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि अब आप 20 इयर्स में आपने अपनी प्राइवेट लाइफ यहाँ पे एस्टेब्लिश कर ली है। ठीक है। तो इस तरीके से ये अब इसी तरीके से अब ये जो आर्टिकल 8 है, ये जो यूके का ह्यूमन राइट एक्ट 1998 है, ये उसमें मौजूद है। ठीक है। अब लोगों के ज़हनों में ये क्वेश्चन मेरे ख्याल में इसलिए भी आ रहा है कि अब हम क्योंकि यूरोप से निकल जा रहे हैं, तो क्या ये ऑब्वियसली क्योंकि जो यूरोपियन कोर्ट ऑफ जस्टिस है उसकी जो जुरिस्डिक्शन है वो भी इस जो बिल है ब्रेक्सिट का उसमें शामिल है कि अब उसकी जुरिस्डिक्शन उस तरह से नहीं होगी और जो प्रायोरिटी होगी वो यूके की अपनी जो कोर्ट्स हैं उनकी होगी। ठीक है। तो उस सूरत हाल में ये है कि क्योंकि ये ऑलरेडी आर्टिकल 8 और दीगर जो आर्टिकल हैं, जो आर्टिकल्स हैं, आर्टिकल 3 हो गया और दूसरे जो आर्टिकल्स हो गए, वो सारे अब ह्यूमन राइट एक्ट 1998 में मौजूद है। ठीक है। इसलिए अब हम सिर्फ आर्टिकल 8 ऑफ ECHR नहीं, अब हम कहेंगे कि जनाब ये जो सेक्शन 8 है या सेक्शन 8 है या जो भी दूसरा सेक्शन है ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट 1998 अंटिल ये लॉ भी मौजूद है ह्यूमन राइट एक्ट का, इसमें भी वो हुकूमत चाह रही है कि कुछ इसमें हम चेंजिंग्स करें। जब वो होगी तो फिर हम अपने उसको जरूर बताएंगे। लेकिन इसमें भी आप फैमिली लाइफ जो है, मसलन अडल्ट चिल्ड्रन है जी, ठीक है, वो ये कहें कि जी हमने अपनी फैमिली लाइफ एस्टेब्लिश कर ली है अपने पेरेंट्स के साथ, ठीक है, तो लॉ ये उस पे कहता है कि जो अडल्ट रिलेटिव्स की जो फैमिली लाइफ एस्टेब्लिशमेंट होती है उसका कानूनी तौर पर इतना वजन नहीं होता। ठीक है। लिहाजा वो ही जो फैमिली लाइफ है जो कि एस्टेब्लिश है विद अ चिल्ड्रन जो कि 18 साल से कम पे हैं और फिर जो आपका सेटल पार्टनर या वाइफ या हस्बैंड जो है उसके साथ है, तो ये दोनों आर्टिकल 8 जो है प्राइवेट एंड फैमिली लाइफ, और दोनों को मैं बता दिया है कि फैमिली लाइफ क्या होती है और प्राइवेट लाइफ। सर बड़ी डिटेल में आपने खूबसूरत तरीके से आपने एक्सप्लेन कर दिया। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नाज़रीन, अगर आप चाहें तो हमें कॉल करके ज्वाइन कर सकते हैं और अपने क्वेश्चन कमेंट्स भी कर सकते हैं। सर एक और क्वेश्चन है, माई मैरिज वो रजिस्टर इन यूके, कैन आई री मैरी आफ्टर आई गॉट माई इस्लामिक डिवोर्स। वो बहुत से लोगों के लिए कि क्वेश्चन यह कि यूके में उन्होंने शादी की, रजिस्टर शादी थी, अब वो कह रहे हैं कि उनकी इस्लामिक जो डिवोर्स है उनकी हो गई है, तो मतलब कि रजिस्टर्ड डिवोर्स जो होते हैं वो नहीं हुई कोर्ट के थ्रू, तो क्या वो री मैरी करके कर सकते हैं? ये क्योंकि बहुत सारा लोग जो हैं वो ये सवाल पूछते भी हैं और इस तरह से आपने ये सवाल जो है वो रखे हैं। तो बात यह है कि जी अगर आपकी मैरिज जो है वो कानूनी तौर पर कहीं पे भी रजिस्टर है, ठीक है, सिर्फ यूके नहीं कहीं पे भी रजिस्टर है, तो वो शादी जब तक कानूनी तरीके से डिसॉल्व ना हो उस वक्त तक आप यू आर नॉट फ्री टू मैरी। ठीक है, ठीक है। अब ये जो एप्लीकेशंस होती है री मैरी करने के बाद अगर आप स्पाउस को लाना चाहते हैं तो वो इमिग्रेशन रूल पैराग्राफ 281 के तहत होती है। ठीक है। अब उसमें पहली जो कंडीशन है, रिक्वायरमेंट है, वो ये है कि यू मस्ट हैव कॉन्ट्रैक्टेड अ वैलिड मैरिज। ठीक। अब वैलिड मैरिज में बहुत सारी चीजों के साथ साथ एक चीज ये भी है कि एट द टाइम ऑफ मैरिज यू आर फ्री टू मैरी। सही, ठीक है। अब ये जिन साहब ने ये सवाल किया है उन्होंने कहा है कि उन्होंने बताया है कि उनकी शादी जो है वो यहाँ पे रजिस्टर्ड है। बिल्कुल। इसका मतलब ये है कि उनको अब यहाँ पे डिवोर्स अप्लाई करनी पड़ेगी। ठीक है, क्योंकि शादी यहाँ पर रजिस्टर्ड, इसका मतलब है कि बोथ पार्टीज जो हैं वो यहाँ पे सी। अब अगर एक पार्टी यहाँ से जा भी चुकी है तो फिर भी यूके की जो कोर्ट्स हैं उनके पास जुरिस्डिक्शन मौजूद है, और मैं ये उनको सजेस्ट करूंगा कि जब तक आपकी मैरिज जो है वो कानूनी तौर पर डिसॉल्व ना हो उस वक्त तक आप जो हैं वो दूसरी शादी ना करें। ठीक है। मतलब निकाह तो लोग फिर कर लेते हैं इसका, तो निकाह कर रहे हैं तो अब बुला नहीं सकते बाहर से बेसिकली। अगर आप वहां जाके निकाह कर लेते हैं, जैसे बस सपोज करें मैं एग्जांपल पाकिस्तान में, अब पाकिस्तान में निकाह जो है वो भी अब रजिस्टर्ड होता है। ठीक है, ठीक है, तो वो फिर क्या, उसको तो नहीं, वो तो फिर आप जब भी आप एप्लीकेशन करेंगे तो आप इनवैलिड हो जाएगा आपका, वो तो आपका इनवैलिड हो जाएगा। अब यहाँ पे यूके के अंदर हाँ सम टाइम ये है कि क्योंकि यहाँ पे जो
इस्लामिक निकाह होते हैं वो क्योंकि कानूनी तौर पर रिकग्नाइज नहीं है, तो यहाँ पे अगर आप निकाह करके रहना शुरू कर दें तो वो आप शरई तौर पर तो रह सकते हैं, लेकिन अगर आप किसी को बाहर से बुलाना चाहते हैं तो वो लीगल राइट्स ज़्यादा अटैच नहीं होते हैं इंसान के। ठीक होगा सर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये एक और भी है, आई विश टू स्पॉन्सर माई वाइफ इन द UK, कैन आई यूज माई एम्प्लॉयमेंट एंड सेल्फ एम्प्लॉयमेंट इनकम टू मीट द रिक्वायरमेंट? उर्दू में बताइए के लिए कि मैं अपने जो है वाइफ को स्पॉन्सर करना चाहता हूँ UK में, और क्या मैं अपनी जो तनख्वाह है जो एम्प्लॉयमेंट से आती है से वेजेस और जो इनकम मतलब कि जो बिजनेस सेल्फ एम्प्लॉयमेंट से पैसे आते हैं उन दोनों की इनकम इकट्ठी करके मैं अटैच करके लगा सकता हूँ? जी, सवाल का जो स्ट्रेट फॉरवर्ड जवाब तो वो ये है कि यस। ठीक है। आप जो हैं वो अपना जो फाइनेंशियल थ्रेशहोल्ड है, जो भी आपका, अगर सिर्फ वाइफ है तो 18,600, अगर बच्चे भी शामिल हैं तो जो भी उसका बनता है, उसके लिए आप अपनी एम्प्लॉयमेंट और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जो है दोनों की इनकम कंबाइन कर सकते हैं। ठीक। लेकिन ये एक कम्प्लेक्स सूरत हाल होगी, इसलिए आपने बड़े ध्यान से अपनी एप्लीकेशन तैयार करनी है, क्योंकि जो स्पेसिफाइड एविडेंस एम्प्लॉयमेंट के लिए लगानी होगी वो डिफरेंट है। ठीक है। और जो स्पेसिफाइड एविडेंस जो है वो आपने सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए लगानी होगी वो डिफरेंट है। ठीक। स्पेसिफाइड एविडेंस का मतलब यह है कि वो डॉक्यूमेंट्स, वो कागजात जो कि लॉ के अंदर लिखे हुए हैं कि आपने लगाने हैं। ठीक है। अब खास तौर पर जब हम एम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं तो उस पे हमने 6 महीने के फ्रॉम द डेट ऑफ एप्लीकेशन पीछे जाएंगे 6 महीने के आपने डॉक्यूमेंट्स लगाने होते हैं, यानी 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट लगाएंगे, 6 महीने की पे स्लिप लगाएंगे। इस तरह से वो उनकी जो है वो 6 महीने है, आपको एम्प्लॉयर का लेटर जो है वो लगाना पड़ेगा, तो उसकी रिक्वायरमेंट डिफरेंट है। ठीक है। अब जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है उसकी एम्प्लॉयमेंट की जो है वो रिक्वायरमेंट डिफरेंट है। उसमें आपने पूरा जो फाइनेंशियल ईयर है आपका, नॉर्मली जो यूके के अंदर फाइनेंशियल ईयर है वो 6 अप्रैल से शुरू होकर 5 अप्रैल तक खत्म हो जाता है। तो आपने अगर आपका ये अकाउंटिंग पीरियड है तो फिर आपने उस पूरे साल के अंदर जो पैसे कमाए हैं वो बताने हैं। मतलब कि किसी ने 2020 में अप्लाई अब करना है तो उसने 2019 अप्रैल से लेके 2025 अप्रैल तक अपने जो डॉक्यूमेंट है सेल्फ वो साथ लगाने हैं। यानी एक तो उसने ये, इसका मतलब ये हो गया कि वो 12 महीने की बैंक स्टेटमेंट लगाएगा। ठीक है। पूरे साल की। ठीक है। इसके बाद उसने फिर लगाना है कि वो जो है एज अ सेल्फ एम्प्लॉयड जो है वो रजिस्टर्ड है HMRC के। ठीक है। फिर वो बताएगा कि उसने अपनी टैक्स रिटर्न जो है वो जमा करा दी। ठीक है। ठीक है जी। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो अलग से उनकी चीज़ें जो है, ये क्योंकि कम्प्लेक्स सूरत हाल है। मतलब सपोज करें कि अगर एक बंदा जो है वो कंपनी का डायरेक्टर है और वहाँ से वो एम्प्लॉय भी ले रहा है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट भी है, तो उसकी सूरत हाल डिफरेंट है। लेकिन जो सवाल करने वाला का बेसिक साहब, मैं आपके देखने वाला को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज नहीं करना चाहता। बात यह है कि आप बिल्कुल एम्प्लॉयमेंट और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की इनकम जो है उसको लगा सकते हैं, लेकिन सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो और हैं जो मैंने मोटे मोटे बता दिए हैं, और एम्प्लॉयमेंट के जो हैं वो मोटे मोटे डॉक्यूमेंट्स मैंने भी आपको बता दिए हैं। और मैं फिर सजेस्ट करूंगा कि आप किसी ऐसे शख्स के से आप ज़रूर राय ले लें जिसको इन सब बातों का पता। सही, बहुत खूबसूरत सर आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आई एम ब्रिटिश सिटीजन, माई चाइल्ड इज़ बोर्न इन पाकिस्तान, कैन आई अप्लाई फॉर ब्रिटिश पासपोर्ट इन UK? जी बहुत शुक्रिया। इसका मैं कहते हैं उनका ब्रिटिश पासपोर्ट इन द UK में डायरेक्ट अप्लाई हो सकती है उनकी? देखें बात यह है कि पहले तो ये बता दें कि बच्चा पेरेंट ब्रिटिश है, बच्चा आउट ऑफ UK पैदा हुआ है तो उसकी नेशनलिटी थोड़ा क्लियर कर दें, उसके बाद फिर जो है ना एप्लीकेशन करते हैं। पहली बात तो ये है कि देखें नॉर्मल प्रिंसिपल ये है कि अगर कोई बच्चा पैदा हुआ है और उसकी पैदाइश के वक्त उसके बोथ पेरेंट्स, जब एक पेरेंट जो है वो जो है वो ब्रिटिश सिटीजन है, ठीक है, ठीक, और वो दोनों आपस में शादीशुदा हैं, ये भी ज़हन में रखें। अच्छा, ठीक है, मियाँ बीवी का आपस में मैरिड होना भी ज़रूरी है। ठीक है, ठीक है। इसलिए अब तो उस सूरत हाल में वो बच्चा जो है वो डायरेक्टली जो है वो ब्रिटिश पासपोर्ट के लिए उसकी इंटाइटलमेंट हो जाती है। ठीक है, ठीक है। इसमें सिर्फ एक चीज़ आपको देखनी, क्योंकि ये बच्चा आउट ऑफ UK पैदा हुआ है। ठीक है। अब इसका पेरेंट जो है, इसका फादर जो है, उसका देखना पड़ेगा कि उसको जो है वो नेशनलिटी कैसे मिली है। ठीक है।
अगर उसको भी नेशनैलिटी उसके फादर के थ्रू मिली हुई है और वो भी यूके से बाहर पैदा हुआ है, ठीक है, तो फिर अब ये फादर जो है ये अपने बच्चे को डायरेक्ट नेशनैलिटी पास ऑन नहीं कर सकता। अच्छा, ठीक है। अब अगर इस फादर ने या मदर जो है ये अगर नेचुरलाइज हुए हैं, यानी उन्होंने अपने राइट के ऊपर जो है वो ब्रिटिश सिटीजनशिप ली है या उसने अपने बाप के थ्रू ही ली है लेकिन वो यहाँ पैदा हुआ था, ठीक है, ठीक है, उस सूरत हाल में तो वो डायरेक्टली अपने बच्चे को ब्रिटिश नेशनैलिटी पास ऑन कर सकते हैं। लेकिन अगर फादर जो है वो भी कंट्री से बाहर पैदा हुआ था और अपने फादर के थ्रू उसने ली हुई है, जैसे ये बच्चा अपने चाह रहा है, तो ऐसे सूरत हाल में वो नहीं ले सकता, ठीक है, डायरेक्ट वो बस एक जनरेशन तक पास ऑन हो सकती है। जो सवाल का दूसरा हिस्सा है वो ये है कि जी क्या वो पाकिस्तान में या यूके के अंदर ब्रिटिश पासपोर्ट के लिए अप्लाई करते हैं, तो दोनों ऑप्शंस जो हैं वो आपके पास मौजूद होते हैं, ठीक है, कि आप पाकिस्तान के अंदर भी अप्लाई कर सकते हैं नेशनलिटी के लिए और आप यूके के अंदर भी अप्लाई कर सकते हैं। यूके के अंदर आपने अप्लाई करना है तो अगेन वहीं आप ओवरसीज वाला फॉर्म इस्तेमाल करके तो उसके साथ आप मैरिज सर्टिफिकेट लगाएंगे, बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट लगाएंगे, जिस हॉस्पिटल में वो पैदा हुआ है उसके डॉक्यूमेंट्स लगाएंगे, ठीक है, ये सारी चीज़ें जो हैं वो लगा के, और जो फादर की जो या मदर की जो ट्रैवल हिस्ट्री है वो आप साथ लगाएंगे कि वो उस वक्त वहाँ मौजूद था जहाँ पे हम ये सोच रहे हैं कि उसने जो है वालदा ने जो कंसीव किया है बच्चे को, तो ये सारा साथ लगाता है। तो फिर जो सवाल की मेन सवाल है कि क्या यहाँ कर सकते हैं यूके में, तो बिल्कुल यूके में हम यूके में अप्लाई कर सकते हैं। थैंक यू सर। नेक्स्ट क्वेश्चन सर ये है कि आई एम एन EU नेशनल वर्किंग इन यूके, विश टू ब्रिंग माई ब्रदर इन दी यूके, व्हाट्स द प्रोसीजर। अब वो मतलब कहना सवाल ये है कि मैं EU नेशनल हूँ और यूके में काम कर रहा हूँ और अपने भाई को यूके में बुलाना चाहता हूँ, तो इसका क्या प्रोसीजर है? अच्छा, ये भी लोग इसको बड़ा लाइटली लेते हैं कि जी भाई को बुलाना है तो बहन को बुलाना है तो मामे के बच्चे को बुलाना है, तो ये सारा सिलसिला कार है। लेकिन ये सबसे पहले तो लोगों को ये बात समझ लेनी चाहिए कि जो रिलेटिव होते हैं उनको मेनली दो ग्रुप में डिवाइड किया जाता है, ठीक है, ठीक है जी। एक होते हैं जनाब फैमिली मेंबर्स और एक होते हैं एक्सटेंडेड फैमिली मेंबर्स। ठीक, आपके जो फैमिली मेंबर्स होते हैं उनमें अंडर रेगुलेशन 2016 जी जी, उसमें जो आपकी वाइफ है जी, आपके बच्चे हैं जो कि 21 साल से नीचे हैं, ठीक है, आपके पेरेंट्स हैं, इसी तरीके से आपके ग्रैंड चिल्ड्रन हैं, और ये सारा आप असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर में जो लोग हैं वो सारे आपके फैमिली मेंबर्स, ठीक है, ठीक है। उसके लिए जो रिक्वायरमेंट है वो डिफरेंट है। सही। इस जो मैंने बताया है आपको रेगुलेशन 7 के अंदर जो आते हैं फैमिली मेंबर, उसके अलावा तमाम लोग जो होंगे वो एक्सटेंडेड फैमिली मेंबर होंगे, ठीक है, ठीक है। पहला क्वेश्चन ये है कि यस, टेक्निकली अगर आप अपने भाई को बुलाना चाहते हैं तो बिल्कुल लॉ में ये गुंजाइश मौजूद है कि आप वो एप्लीकेशन कर सकते हैं। वो एप्लीकेशन आप करेंगे फैमिली परमिट के लिए, ठीक है। अब इस फैमिली परमिट की एप्लीकेशन में आपने दो चीज़ें साबित करनी है, ठीक है। आपने ये साबित करना है कि एक तो वो भाई है जिसको आप बुलाना चाहते हैं वो आपके ऊपर फाइनेंशियली और इमोशनली डिपेंडेंट है, ठीक है, ठीक है। अगर आप डिपेंडेंसी शो कर देते हैं तो ऐसी सूरत हाल में क्या होगा कि आपके भाई को वीज़ा मिल जाएगा, ठीक है, ठीक है। ये उसका प्रोसीजर है। पहले सबसे पहले तो आपको वो बताना पड़ेगा, अपना रिलेशनशिप बिल्डअप करना पड़ेगा, शो करना पड़ेगा कि जी वो आपका भाई कैसे है, ठीक है। फिर आपको बताना पड़ेगा कि वो आप पे फाइनेंशियली डिपेंडेंट है, आप उसको पैसे भेज रहे हैं या किस तरह क्या कर रहे हैं आप उसको, वो आपके ऊपर डिपेंडेंट है। फिर आपको ये बताना होगा कि आप यूरोपियन नेशनल हैं, ठीक है। फिर आपको ये बताना होगा कि आप यूके के अंदर अपने ट्रीटी राइट एक्सरसाइज कर रहे हैं, या आप काम कर रहे हैं यहाँ पे, या सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, फुल टाइम एजुकेशन में हैं, जॉब सीकर्स हैं। तो इस तरह में अगर आप ये सारी चीज़ें साबित कर सकते हैं तो फिर आपके भाई का वीज़ा हो सकता है। लेकिन मैं अक्सर ये कहा करता हूँ कि अगर जो डिपेंडेंसी है वो अगर जितनी ज़्यादा पुरानी होगी उतनी बेहतर है, ठीक है, उसे उतना ही आपका वीज़ा लगने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, ठीक है। अब अगर सपोज करेंगे मैं आज भाई को पैसे भेजा, अगले वीक मैं एप्लीकेशन कर देता हूँ और उसके साथ एक स्लिप मैंने लगाई हुई है जी मैंने भाई को 100 पाउंड भेजा या 200 पाउंड भेजा,
تو وہ یہ کہیں گے اچھا ابھی تو آپ نے بھیجا تو پھر اس سے پہلے بھائی کیا کر رہا تھا, بالکل صحیح ہے, کیسے کر رہا تھا اس پہ. تو جتنی پرانی ہوگی اتنی بہتر ہے, جتنی پرانی ہوگی اتنی ہی بہتر ہوگی. اب ایک اور چیز جو میں نے اب نوٹس کی ہے ڈفرینٹ ریفیوزل میں, وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ بھی یہ بتائیں اپنا انکم اور ایکسپینڈیچر کا چارٹ بھی دیں. چارٹ بھی ٹھیک ہے. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں اس کو سپورٹ کر رہا ہوں فائنینشلی, اور دوسری سائڈ پہ جب آپ بتاتے ہیں کہ جی آپ یہاں بینیفٹ کلیم کر رہے ہیں, یا پھر آپ اب ایک شخص جو ہے وہ کہتا ہے جی کہ میں 800 پاؤنڈ جو ہے وہ میری مہینے کی انکم ہے, اور اس 800 میں سے 600 پاؤنڈ جو ہے وہ کرایہ دے دیتا ہے. ٹھیک ہے, اس کے 2 بچے اپنے ہیں. ٹھیک ہے, اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ اس کا اپنا خرچہ یہاں پہ پورا نہیں ہو رہا, تو وہ پھر اپنے بھائی کو جو ہے وہ کیسے کرتا ہے. تو اس طرح کی چیزیں اب میں نے نوٹس کیا ہے کہ جو اینٹی کلیئرنس آفیسر ہے وہ ان چیزوں کو بھی دیکھ رہا ہے. تو پروسیجر ہم نے ان کو بتا دیا ہے کہ وہ اپلیکیشن کریں گے, آن لائن اپلیکیشن جو ہے وہ فیملی پرمٹ کے لیے, اور اس کے لیے جو چیزیں لگنی ہیں وہ بھی میں نے آپ کو بتا دی ہیں کہ کیا کیا چیزیں جو ہے. آپ نے بڑی ڈیٹیل کے ساتھ اپنے سارے کوشچن کو جواب دے دیا. ایک اور فائنل کوشچن کرتے ہیں تھوڑا سا, اس کے بعد لاسٹ کوشچن یہی ہے, آگے سنا کہ یو کے میں نیا پوائنٹ پہ سسٹم آ رہا ہے, اس کے مطلب تھوڑی سی ہمارے ناظرین کو اپڈیٹ ہلکی سی دے دیں تو تھوڑی سی اس کے بعد اس پہ ہم بات کریں گے نیکسٹ ویک. لیکن دیکھیں اس کے اوپر پوائنٹ پہ سسٹم جو ہے وہ انٹائرلی اس میں بہت ساری چینجنگز آئی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ یہ جو ٹیئر 2 یا ورک پرمٹ کا سلسلہ تھا اس کے اندر اب جو ہے وہ کافی ساری چینجنگز آئی ہیں, اور دوسرا یہ ہے کہ اسٹوڈنٹ کے لیے بھی بڑی چینجنگز ہیں. ٹھیک ہے جی, وہ جیسے مثلا ابھی آج کی جو ہے کہ آپ اپنا کورس شروع ہونے سے 3 مہینے پہلے تک اپلائی کر سکتے ہیں, لیکن اس کو یہ بڑھا کے 6 مہینے تک کر رہے ہیں. ویری گڈ. ٹھیک ہے, اسی طریقے سے جب یہاں پہ آپ آ جائیں گے اور اپلیکیشن کریں گے اب آپ ایکسٹینشن کے لیے, تو اس میں وہ جو فنڈز شو کرنے ہوتے ہیں وہ بھی ختم کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, اس طرح کی بہت ساری چینجنگز جو ہیں انگلش لینگویج کے حساب سے کیا چیزیں کر رہی ہیں. پھر آپ نے کتنے آورز جو ہے یونیورسٹی میں جانا ہے, خاص طور پر اگر آپ ماسٹر ڈگری کر رہے ہیں, تو یہ ساری چیزیں جو ہیں کرے ہیں. تو میرے خیال میں ایک پروگرام جو ہے وہ ہم صرف اسٹوڈنٹ ویزے کے اوپر کرتے ہیں کہ اب جو آنے میں وہ آنے والی چینجنگ جو ہیں وہ 5 اکتوبر سے وہ امپلیمنٹ بھی ہو رہی ہیں. 5 اکتوبر کے بعد جو ابھی کریں گے اس میں بڑا. تھینک یو سر, تھینک یو ویری مچ شویب صاحب, آپ نے اپنا ٹائم دیا. ویورز, آج کے پروگرام میں ہم نے کوشش کی ہے کہ وہ تمام سوالات جو آپ اکثر ہمیں کرتے ہیں, میسج کرتے ہیں, کمنٹس میں کرتے ہیں, ہم نے زاہد شویب صاحب کے سامنے رکھے. انہوں نے اپنے تمام سوالات کے مطابق ڈیٹیل انفارمیشن ہمیں دی. اگر آپ کو بھی اس قسم کے کسی سوال کا یا کوئی مشکلات سامنے آئے امیگریشن کے لحاظ سے, آپ ہمیں میسج کر سکتے ہیں, کامنٹ کر سکتے ہیں, اس پروگرام میں کال بھی کر سکتے ہیں. نیکسٹ ویک ہماری کوشش ہوگی کہ اسی ٹائم پہ دوبارہ جو ہے نا یہ ہے کہ یہ کیونکہ یہ جو پروگرام میں نے رکھا ہوا ہے امیگریشن لاز ود زاہد چودھری, جو ہر تھرسڈے کو ہم 6 بجے کے اراؤنڈ کرتے ہیں, تو یہ اس کا مقصد ہی صرف یہ ہے کہ لوگوں کی خدمت کرنا ہے. یہ جنرل انفارمیشن کے لیے پروگرام ہوتا ہے, لوگوں کا پروگرام ہے, لوگوں کے سوالات کی روشنی میں ترتیب دیتا ہوں. تو لوگ جو ہیں وہ اگر ZMC نیٹ ورک جس کے اوپر یہ دیکھ رہے ہیں اس کو آپ اگر لائک کریں, آپ اس کو فالو کریں, تو آپ کو ہمارے آنے والی جتنی بھی لائیو پروگرامز ہوں گے وہ آپ تک پہنچ جائیں گے. اسی طریقے سے اگر آپ ZMC TV یوٹیوب کو آپ سبسکرائب کریں تو جتنے بھی ہمارے لاء سے ریلیٹڈ یا دیگر جو پروگرامز ہیں وہ آپ لوگوں تک پہنچ سکتے ہیں. اس پروگرام کا کرنے کا مقصد صرف یہ آپ کا پروگرام ہے, آپ کے سوالات کی روشنی میں ترتیب دیا جاتا ہے. ناظرین, آج کے پروگرام میں میری اور زاہد طرف سے اتنا ہی تھا. اپنے گرد و نواح کے لوگوں کا خیال رکھیے گا. انٹل نیکسٹ ٹائم, اللہ حافظ.